Is academic success more about having a high IQ or about developing the ability to recover from setbacks? There is one word, resilience, that is more important. In the life, sometimes you are not able to do as per the expectation. No need to be disappointed. Let me tell you that teaching, learning and assessments are the integral part of the education. बच्चों को ये समझना चाहिए कि एग्जामिनेशन केवल एक ओकेजन नहीं है, इसकी प्रिपरेशन थ्रू आउट ईयर चलती रहती है। जो पढ़ाई का समय है या पढ़ाई के समय जो बच्चा ग्रो करता है, उसमें टीचर्स और पेरेंट्स का बराबर का रोल है। Good morning. We are honored to welcome our respected principal, sir, Dr. Ram Singh. With over 26 years of experience in educational leadership, Sir has worked closely with students and teachers across premier institutions. Known for his disciplined yet compassionate approach, Dr. Ram Singh strongly believes in nurturing not only academic excellence but also emotional strength, character building, and lifelong learning. Sir, we are truly grateful for your time and guidance today. Thank you. Thank you very much. Sir, but we'd welcome you to the podcast here. So, as we move into the final quarter of the academic session 2025 to 26, students of classes 10th and 12th are facing immense pressure due to the upcoming board examinations. From your vast experience, what practical strategies could you suggest to help students remain calm, focused, and confident during this demanding phase? Okay, let me tell you that teaching, learning, and assessments are the integral part of the education. Children are knowing that once they have to learn, after that they have to check how much they have learned. So assessment is also the part of education system. 10th and 12th, since it is the board examination, first time they are in their life they are going for the board examinations. So they might be little afraid to that. But I believe school D. Besmutha Road has many examinations like half yearly, then midterm and post midterm, pre board examinations. All these examinations and tests are there just to make the practice, just to understand the question, just to make the practice how to shift 3 hours, how to attempt the questions, how to write. So children have gone through the experience of these attempting and doing well in the examination. So I think once they should believe in themselves, if they have done proper way the preparation and practice, they will not have the fear. Okay, yes, sir, absolutely. Sir, over the years, you've closely observed high performing students. In your opinion, is academic success more about having a high IQ or about developing the ability to recover from setbacks, like a disappointed mock test? No, you see that resilience, there is one word, resilience, that is more important. You know that it is not necessary that every time you will get the good percentage, 100 percentage, or you will do absolutely well. In the life, sometimes you are not able to do as per the expectation. No need to be disappointed because this is not the first examination or last examination. After this, also you will get the chance to appear. So it is better to attempt or to do the things nicely when time is there, means when you are going for the examinations. I think along with the IQ and that along with the IQ, presence of mind, even practice gives the perfection. So I think children will able to do well and if they are having the proper practice and proper preparation. Yes, sir, we absolutely agree with you. सो हम अक्सर देखते हैं कि एग्जाम का प्रेशर सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि स्टूडेंट्स की मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर भी गहरा असर डालता है। इस सिचुएशन को स्टूडेंट्स और स्कूल कैसे बेटर हैंडल कर सकते हैं? देखिए, बच्चों को ये पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन तो रहेगा, चाहे वह एकेडमिक का हो या कभी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कभी आपके डांस कॉम्पिटिशन्स होते हैं, क्विजेज होते हैं, तो आपको परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हमको लगता है कि बच्चों को जो स्कूल के सिस्टम बने हुए हैं, डिफरेंट एग्जामिनेशंस के, असेसमेंट के, फिर जो कॉपी चेकिंग होती है जिसमें अपने मिस्टेक्स को देखते हैं, माइनर मिस्टेक्स को देखते हैं, सिली मिस्टेक्स को देखते हैं, फिर इसको इम्प्रूव करते हैं।
तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि एग्जामिनेशन केवल एक ओकेजन नहीं है, इसकी प्रिपरेशन थ्रू आउट ईयर चलती रहती है। और हर एग्जामिनेशन को जब हम सीरियसली देना शुरू करते हैं तो एग्जामिनेशन का जो फियर है वो नहीं रह जाता है और बच्चे अच्छा कर जाते हैं। जी सर, हम आपके कैसे सहमत हैं। सर, बोर्ड एग्जाम्स का तनाव अक्सर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों पे होता है। क्या आप मानते हैं कि बोर्ड एग्जाम्स को लाइफ डिफाइनिंग माना जाना ही स्ट्रेस का कारण बन जाता है? देखिए, हम नहीं कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो लाइफ डिफाइनिंग फैक्टर है। हम लोगों ने अपनी लाइफ में देखा है बहुत से बच्चे अच्छा नहीं किए हैं, मीडियोकर्स भी लाइफ में रहे हैं, वो भी अच्छा लाइफ में कर रहे हैं। लाइफ में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यह बोर्ड के एग्जामिनेशन पर कतई डिपेंड नहीं करता है। लेकिन चूंकि एक हर बच्चे के अंदर में, हर पर्सनालिटी के या पर्सन के अंदर में एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक एग्जामिनेशन में बिना फियर रखे एग्जामिनेशन को देने का स्पिरिट इनकलकेट होना चाहिए। तो ये सभी एग्जामिनेशन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, कोई लाइफ डिफाइनिंग या फैक्टर नहीं है। तो हमको लगता है बच्चों को इतना नहीं सोचना चाहिए। जैसा आप बोल रहे थे कि पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे पूरा परिवार इंगेज हो जाता है। जब किसी भी परिवार का कोई बच्चा एग्जाम देने जाता है तो ये माँ बाप का कर्तव्य बनता है कि उसको एक कंडीशन इन्वायरमेंट टाइप हो दें, उसके तैयारी में हेल्प करें, वो टीचर से बात करते हैं। तो सभी एलिमेंट का यही पेरेंटिंग है। पेरेंट अगर बच्चे के साथ खड़े होते हैं, बच्चे के साथ सपोर्ट करते हैं, बच्चे को एक कंडीशन इन्वायरमेंट देते हैं, तो यह उससे बच्चा अच्छा परफॉर्म कर जाता है। उसको ये विश्वास होता है कि हमारे पीछे बहुत लोग खड़े हैं। तो ये ज़रूरी है, आज जो भी बच्चे अच्छा कर रहे हैं केवल टीचर के कारण नहीं, स्कूल के कारण नहीं, यह टीचर्स और पेरेंट्स के कारण बच्चे अच्छा कर रहे हैं। जी सर। सो आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब और स्टूडेंट्स के 12 आवर स्टडी ब्लॉग्स और परफेक्ट शेड्यूल्स देखकर स्टूडेंट्स अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। ये इनविजिबल कंपटीशन उनके कॉन्फिडेंस को काफी कम कर देता है। आप स्टूडेंट्स को डिजिटल कंपैरिजन से खुद को बचाने के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे। देखिए, आज के समय में यह टेक्नोलॉजी का एरा है, एआई का है, गूगल है, बच्चे मोबाइल फ़ोन्स हैं, ये सब साइंस के इन्वेंशन है, साइंस के डेवलपमेंट होके आए हैं। हम नहीं कह सकते बच्चों को कि इसको नहीं देखना है, नहीं छूना है। लेकिन साइंस के बारे में कहावत है कि ये हमारे लिए बोन है और हमारे लिए डिजास्टर भी होता है। साइंस को कैसे हम डील करते हैं। तो अगर बच्चे इसको इसका जो प्रयोग जो है उसके अति करेंगे, उसको ज़्यादा करेंगे, तो यह बच्चों को डिजास्टर करती है। उनके मेमोरी को, उनके रिटेंशन को, उनके फोकस को, कंसंट्रेशन को बच्चों का प्रभाव पड़ता है। बच्चे आजकल बहुत इरिटेटेड हो जाते हैं और हेडेक उनको होता है, आइज का भी पर इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये ज़रूरी है कि हमको हर क्लास वाइज कितना यूज करें इसको बच्चों के को जानना ज़रूरी है। लेकिन यह एडिशनल हो सकता है, यह पूरे बुक्स को, क्लासरूम के टीचिंग को, रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग और स्पीकिंग को यह रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कभी-कभी बच्चे क्या है क्लासरूम में अटेंशन ना दे करके, उसका प्रॉब्लम्स को घर में सॉल्व नहीं करके, पेन पेपर पर नहीं करके, अगर केवल मोबाइल फ़ोन से देख के अगर समझ रहे हैं कि हमने समझ लिया और हम एग्ज़ामिनेशन में कर देंगे, तो यह उनकी गलती है और ये भूल कर रहे हैं। और उसके लिए वही सब कारण फिर आगे जाके बनता है कि एग्जामिनेशन के समय स्ट्रेस होता है। एग्जामिनेशन में बच्चे बैठते हैं तो पैर कांपने लगा, हाथ कांपने लगा, लिख नहीं पाते। 3 घंटे में वो उनको टाइम मैनेजमेंट पता नहीं है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट है, राइटिंग है, एक्सप्रेशन है, ये सब के लिए बच्चों को पेन और पेपर का यूज करना चाहिए। इसको एज ए सपोर्ट टेक्नोलॉजी को ले लें। अगर मान लीजिए किसी प्रॉब्लम को, किसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, तो गूगल पर है, बहुत तरह से समझाया जाता है, बहुत तरह के लोग अपने वीडियोज को अपलोड किए हैं। तो सीखने के लिए फ्री है, लेकिन उस पर डिपेंड होना और केवल उसी से सीखना हमको लगता है कि ये हार्मफुल है। देयर इज द मीनिंग ऑफ क्लासरूम टीचिंग। टीचर्स का भी एक अपना रोल है, टीचर्स का इम्पोर्टेंट है। और ये मान लें, मैं बार बार ये बोलते आया हूँ कि जो
एजुकेशन है, बच्चे स्कूल एजुकेशन के लिए आते हैं, एकेडमिक उसका एक पार्ट है। एकेडमिक के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से स्किल्स हैं, पर्सनालिटी है, कम्युनिकेशन है, बिहेवियर है, वैल्यूज है, जो बच्चे सीखते हैं स्कूल में। तो बच्चों को मोबाइल ज़रूर देखें, लेकिन कितना देखें उसका ध्यान रखें, और उसके होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसको भी जानते रहें। तो अपने घंटे वाइज डिवाइड कर लें कि हमको मान लीजिए हम 7th क्लास में हैं, तो 1 घंटे हम बैठ के अगर देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो करंट अफेयर्स क्या चल रहा है दुनिया में जानना ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा उसी पर डिपेंड हो जाना और अपनी सेल्फ स्टडी को और सेल्फ प्रैक्टिस को कम कर देना, यह बच्चों भी बहुत हद का रखोगा। ये सब बिल्कुल। सर, स्कूल एग्जामिनेशंस का पर्पस और स्टूडेंट्स को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करना होता है, लेकिन कई बार ये एंजाइटी को और बढ़ा देता है। स्टूडेंट्स को प्री बोर्ड को किस नज़रिए से देखना चाहिए ताकि ये प्रेशर नहीं, प्रिपरेशन का जरिया बन सके? देखिए हम बहुत तो सबक नहीं दिख रहे हैं इस पर कि जो स्कूल के एग्जाम्स होते हैं यह और एंजाइटी को बढ़ा देता है। देखिए स्कूल में कई तरह के एग्जाम्स होते हैं। इतना लिबरल सिस्टम स्कूल का होता है कि अगर हम 15 डेज में जो पढ़ लिए, उस एक चैप्टर थोड़ा सा सिलेबस है उसकी प्रैक्टिस कर लें, तो हमारे मंडे टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट जो होते हैं, तो हम छोटे छोटे पार्ट में करके अपना उसको तैयार करते जाएं, पढ़ते जाएं। फिर हमारे मिड टर्म एग्जामिनेशन, फिर पोस्ट मिड और प्री बोर्ड होते हैं। तो देखिए आपको बताया कि बोर्ड एग्जामिनेशन तो बड़ा सरल एग्जामिनेशन है, यह लाइफ का सबसे सरल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जामिनेशन है। इसके बाद तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ बड़ी अनसर्टेनिटी रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है, और क्वेश्चन का पैटर्न भी नहीं पता होता किस तरह से पूछा जाता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर का ब्लूप्रिंट रहता है कि हर चैप्टर से कितने, हर चैप्टर का क्या वेटेज है, फिर उस चैप्टर का से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, या उसके सब्जेक्टिव होंगे, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, सब कुछ पता होता है। तो जो प्री बोर्ड्स और पोस्ट मिड टर्म एग्जामिनेशंस होते हैं, यह उसको जानने का एक तरीका है। उसके थ्रू बच्चे एक्विवेंट होते हैं, जानकारी ले लेते हैं कि भाई हर चैप्टर का क्या वेटेज है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्या मार्किंग स्कीम है, क्या ब्लूप्रिंट क्वेश्चन पेपर का है, कहाँ पर मार्क्स कटते हैं, हम बैठते हैं एग्जामिनेशन में तो किस तरह के मिस्टेक्स करते हैं, उसको करेक्ट किया जा सकता है। देखिए बच्चों का परफॉर्मेंस तभी बढ़ता है जब वो अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करते जाते हैं और मिस्टेक्स को मिनिमम करते जाते हैं। जैसे कोई बच्चा 95 मार्क्स पा गया, तो उसके लिए हमारा मानना है कि 95 से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो 5 मार्क्स का जो उसका कटा। क्योंकि आप बताओ जो बच्चा 95 मार्क्स पा सकता है, वो 5 भी पा सकता है। इसका जो 5 मार्क्स जो कटा है, वह किसी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के कारण नहीं कटा है। वो अगर कटा है तो कोई मिस्टेक्स कारण कटा है। कहीं सिली मिस्टेक्स है, कहीं फार्मूला नहीं लिखा, कहीं उसने यूनिट नहीं लिखा, या जो अदर तरह की मिस्टेक्स है। तो यह एग्जामिनेशन जो है ये करेक्शन का, सेल्फ इम्प्रूवाइजेशन का, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का के लिए होता है। तो बच्चों को इस एग्जाम को इसी तरह से लेना चाहिए। क्योंकि जो 10th और 12th के जो इंटरनल स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, इसके सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता है, इसके आधार पर कहीं एडमिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्कूल देता है सो दैट बच्चे एक बार तैयारी करें, रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, आके एग्जामिनेशन में 3 आवर्स बैठें, लिखें, किस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट, अगर हम बच्चे को प्री बोर्ड या हाफ ईयरली अगर पहले नहीं कराएंगे, तो उसको 3 आवर्स में इसको कंप्लीट करने का उसकी प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही है। एक एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट होता है। आप अगर बच्चा साल भर पढ़ रहा है, स्कूल नहीं आया, सीधे बोर्ड एग्जाम में गया, तो मेरा मानना है वो 3 आवर्स उसको सिटिंग का, टाइम मैनेजमेंट का, एक बोर्ड का जो एग्जामिनेशन का इन्वायरमेंट होता है, उस इन्वायरमेंट से मिस हुआ है पूरे साल भर, तो हमको नहीं लगता है वो बच्चा अच्छा कर पाएगा। सर सर, माता पिता और टीचर्स स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप उन्हें क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि वे स्टूडेंट्स के लिए एक सपोर्टिव, मोटिवेटिंग और प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट बना सके? देखिए, मैं तो बहुत इसमें विश्वास करता हूँ, और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं पेरेंट्स से, टीचर से कम्युनिकेट भी करता हूँ कि जो फर्स्ट टीचर्स हैं, ऐसा कहा भी जाता है, माना भी जाता है कि वो पेरेंट्स हैं। हम लोग
उसके बाद बच्चे जो है वो स्कूल में या टीचर्स के थ्रू सीखते हैं। तो वो फर्स्ट पेरेंट है तो हम लोग सेकंड पेरेंट्स हैं, हम लोग फर्स्ट टीचर्स हैं तो उनको मानते हैं सेकंड टीचर्स है। एंड किसी बच्चे की ग्रोथ में बच्चा किस तरह का सिटीजन बनेगा, कैसे ग्रो करेगा, क्या उसका बिहेवियर होगा, क्या उसमें वैल्यूज होगी, ये डिपेंड करता है टीचर्स पर और उनके पेरेंट्स पर। पढ़ाने का काम टीचर्स करता है, बट पढ़ाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का काम टीचर्स पेरेंट्स करते हैं। हम बच्चे को पढ़ा के भेजते हैं, बट बच्चा घर में जाता है किस तरह से प्रैक्टिस करेगा, बैठ के रिवाइज करेगा, अपने उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको पेरेंट्स टीचर्स से डिस्कस करते हैं। तो इस बच्चे के जो पढ़ाई का समय है या पढ़ाई के समय में जो बच्चा ग्रो करता है, उसमें टीचर्स और पेरेंट्स का बराबर का रोल है। हम तो मानते हैं कि इवन प्राइमरी एजुकेशन में और टिल मिडिल क्लासेस पेरेंट्स का रोल ज़्यादा होता है। और आपको बताएं कि मैंने जो 30-35 इयर्स का हमारा एजुकेशन का एक्सपीरियंस है, हमने देखा है कि वही बच्चे अच्छा करते हैं जिनके पेरेंट्स स्कूल से कोऑर्डिनेट किए हैं, कम्युनिकेट किए हैं, कांटेक्ट में रहे हैं, जो टाइम टू टाइम बच्चे के प्रॉब्लम को टीचर से शेयर किए हैं और एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट खत्म दिया है। तो पेरेंट्स केवल स्कूल में या किसी कोचिंग में भेज के ना सोचे कि बच्चे अच्छा कर लेंगे या ट्यूशन मास्टर लगा के कर लेंगे। नहीं, बच्चे पेरेंट्स का काम केवल पेरेंट्स ही कर सकते हैं और उसके लिए है बच्चे के साथ बैठना, बच्चे को सहयोग करना, बच्चे के प्रॉब्लम को समझना, टीचर से डिस्कस करना और बच्चे को मोटिवेट करना। क्योंकि लाइफ में इस फेज में कई बार डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं, फियर भी आते हैं, स्कूल डेज में, कॉलेज डेज में। उस समय कोई उन बच्चों के साथ खड़ा होना चाहिए। पेरेंट्स पहले खड़े होंगे, सेकंड आपके टीचर्स खड़े होते हैं। तो पेरेंट्स का रोल इम्पॉर्टेंट है, बच्चे का सहयोग उसकी पढ़ाई में, उसके विकास में, एक अच्छा नागरिक बनने में, और उसको कोई दूसरा रिप्लेस नहीं कर सकता। जी सर, हम आपके बात से सहमत हैं। और सर, आजकल एआई हमारी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुका है। क्या आप मानते हैं कि एआई को स्टूडेंट्स अपने लर्निंग गैप्स पहचानने और स्टडी एड के रूप में रिस्पॉन्सिबली यूज कर सकते हैं? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि चेंज जो है वो परमानेंट है। चेंज के साथ लोगों को चेंज होना चाहिए, चेंज को अडॉप्ट करना चाहिए। और अब जो टेक्नोलॉजी है, इस समय जो चेंजेस हो रहे हैं वो पहले के समय के चेंजेस से थोड़े फास्ट हो रहे हैं। अभी जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है 2020 एनईपी जो आया था, उसमें भी इसी को बात किया गया था कि नॉलेज से जो है स्किल्स की तरफ हम जा रहे हैं, रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, प्लेवे मेथड से पढ़ रहे हैं, स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। और उसी के टेक्नोलॉजी का थोड़ा ब्रेडेड फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके द्वारा हम कार्य एक्टिविटीज को देख करके टेक्नोलॉजी बता देगा कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं और किस तरह से सोच रहे हैं, पॉजिटिव है या क्या इमेजिन कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यह साइंस का जो डेवलपमेंट हुआ है, कहा जाता है कि आज का जो टेक्नोलॉजी है वो कल की साइंस है। तो यह एक साइंस है। अब इस टेक्नोलॉजी के साथ ही हमको रहना पड़ेगा। अब इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करना पड़ेगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कितना टाइम टेक्नोलॉजी या मोबाइल फ़ोन को यूज करना है। तो उसी तरह से टेक्नोलॉजी है। अगर इसको कुछ सीखने के लिए कंस्ट्रक्टिव वे में एक अच्छे माइंडसेट के साथ अगर हम यूज कर रहे हैं, इट विल हेल्प। अगर हम ज़्यादा यूज करेंगे, हर चीज़ के लिए करेंगे, तो हम लोगों का जो चैलेंज दिख रहा है एज एजुकेशनर, जो हम देख रहे हैं, बच्चों की जो क्रिएटिविटी है या थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो सॉल्यूशन खोजना जो होता है उसी में हम डेवलप करते हैं। हमारे ब्रेन का भी विकास होता है जब कहीं हम स्ट्रगल करते हैं, कुछ आइडिया सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो यह जब अगर हमारी डिपेंडेबिलिटी एआई का टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है कि हमारे बच्चों पर प्रभाव पड़े, उनके थिंकिंग पर, उनके स्ट्रगलिंग पर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग पर, क्रिटिकल थिंकिंग पर को अफेक्ट कर सकती है। बट चीज़ें बदलती हैं और हमको लगता है कि उसका भी सोल्यूशन निकलेगा। उस तरह के क्वेश्चंस आने लगेंगे, उस तरह के जो बच्चों की कॉम्पिटेंसी है, स्किल्स टेस्ट होने लगेगी, जो कि उस एआई के बाहर भी होगी। बट द सेम टाइम हमारे करियर भी ऑप्शंस जो है चेंज हो रहे हैं।
पहले के जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस थे, अब बच्चे उससे हट के जो ज़्यादा क्रिएटिव और ये सब हैं, नए तरह के करियर ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जैसा हमारी नीड होती है वैसा इन्वेंशन होता है, और जैसा इन्वेंशन होता है उसी तरह से हम आगे हमारा ग्रोथ होता है। जी सर, तो हमें एआई को लिमिट में यूज़ करना चाहिए। जी, जहाँ पर इसका यूज़ हो वही यूज़ करना चाहिए। हर चीज़ के लिए नहीं। आप देखिए, एआई को आप एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और भी चीज़ों में, तो उसका एक लिमिट रखना चाहिए छात्र जीवन तक। Sir, as we come to as we come close to the end of this session, what message would you like to share with the students who are preparing for or about to appear for their exams? देखिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए वो जो बच्चे हैं उनके लिए एक मेरा मैसेज है कि बोर्ड एग्जामिनेशन आपका लाइफ टाइम एग्जामिनेशन, ये सीरियस एग्जामिनेशन है। जो भी मार्क्स आप पाते हैं वह थ्रू आउट लाइफ आप वही लिख पाते हैं, उसको आप बदल नहीं सकते। तो हम जरूर करना चाहेंगे कि इस एग्जामिनेशन को सीरियसली लिया जाए। दूसरी है, स्कूल के जो बच्चे हैं इनको पूरी तैयारी कराई गई है। केवल क्लासरूम में पढ़ाया नहीं गया, प्रैक्टिस नहीं कराया गया, इसके बाद उनके बच्चों के टेस्ट भी लिए गए, उनकी कॉपियाँ भी दिखाई गई, उसमें जो मिस्टेक्स है उनके बारे में बताया गया है। तो बच्चों का प्रिपरेशन हुआ है। अब बच्चों को कोई फ़ियर लाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जानना, नॉलेज रखना और एग्ज़ामिनेशन में अच्छे मार्क्स पाना दोनों अलग-अलग होता है। बच्चों को हम ये कहना चाहेंगे, देखो जो बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस होंगे, उसके क्वेश्चन पेपर के ब्लूप्रिंट को एक देख लें, उसकी मार्किंग स्कीम को समझ लें, कहाँ से मार्क्स मिलता है, कहाँ मार्क्स नहीं मिलता है। कभी भी देखा जाता है कि कभी 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस सफिशिएंट है, बच्चे आधा पेज लिख रहे हैं, कोई यूज़ नहीं है। तो हर मार्क्स के क्वेश्चन के साथ जितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उतना का वर्ड लिमिट होता है, उसका ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान दें, उनकी प्रैक्टिस भी है, अपना नॉर्मल रूटीन रखें। कोई ऐसा नहीं है कि एग्ज़ामिनेशन के दिन ज़्यादा रात तक जगें। जिस समय एग्जामिनेशन होता है आपका जो 10:30 से 1:30 तक है, अब रोज जो है अभी अगला जो 10-15 दिन है, उसी समय बैठ के पढ़ें। 3 घंटे कंटिन्यूअस बैठ के पढ़ें। जो नॉर्मल उनके खान-पान का है वही करें, जो नॉर्मल प्रैक्टिस करते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं वही करें। एग्जामिनेशन को बड़े सरल तरीके से लें। सीरियस एग्जामिनेशन है बट उसको लिया कैसे जाना है उस पर डिपेंड करेगा, और उसके क्वेश्चन को आप क्वेश्चन वाइज पढ़ना शुरू करें। अगर वो थियरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो उससे बेहतर है कि चैप्टर वाइज खोलें, वो चैप्टर कितने वेटेज का है वो देखें, इससे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। जैसे जनरली देखते हैं बच्चे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसमें 20 मार्क्स की क्वेश्चन रहते हैं, और बच्चे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सभी चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेंगे, इसलिए उनका 20 मार्क्स वहाँ से आ जाएगा। उसमें जनरली थोड़ा बच्चों का मिस्टेक्स होता है और बच्चों का मार्क्स करता है। फिर आता है डेरिवेशंस आते हैं। टोटल पूरी बुक में आप देखेंगे 7-8 या 10 डेरिवेशंस है, उसमें से 2 डेरिवेशंस आना है, 3 आना है, बच्चों को पता है। अगर वो किसी भी क्वेश्चन पेपर के किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर और ब्लूप्रिंट को देख लेते हैं तो उनको पूरे पेपर के बारे में पता रहेगा कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। केस स्टडी क्वेश्चंस आते हैं, हॉट क्वेश्चंस आते हैं, उसकी अलग से प्रैक्टिस कर लें। तो एक रूटीन माने और उसी के तरह तैयारी करें तो हमको नहीं लगता है कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्कूल एग्जामिनेशन की बात है, एग्जाम्स में हमेशा टारगेट जो है थोड़ा ऊपर रखना चाहिए। हम जैसे प्रीवियस मथुरा रोड में बच्चों से बात करते हैं, हमने कहा है कि जो पिछला एग्जाम हुआ है उससे 10% अपना मार्क्स को इम्प्रूव करे। कहा जाता है कि सक्सेस जो है वह लिफ्ट से नहीं मिलती है, वो स्टेयर से मिलती है, स्टेप बाय स्टेप मिलती है। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए अपना एक बच्चे टारगेट रखें और उसको अचीव करें, तो ग्रोथ अपने आप होते जाता है। हमने जो अभी पिछले एग्जाम में बच्चों से बात किया था, हमको टारगेट दिया था, 50 से 100 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपने मार्क्स को 25 से 75% तक बढ़ाए थे। जो बच्चे 40 पे आए थे वो उससे बढ़ा करके 75 आ गए। ये शो करता है कि हर बच्चे में कॉम्पिटेंसी है। जो जितना जल पानी के अंदर जाएगा उतना ही सीप को खोज के लेके आएगा। हार्ड वर्क का, मेहनत का, स्मार्ट वर्क का, डेडिकेशन का, कमिटमेंट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। कभी भी सस्ते रास्ते से, शॉर्टकट मेथड से कोई भी सक्सेस जो है नहीं अचीव किया जाता है। तो बच्चों को ये मानना पड़ेगा कि अगर हमको मेहनत करनी है तभी हमको रिजल्ट आना है, और जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं
जो बच्चे फोकस्ड हैं, टारगेट अपने गोल की तरफ ओरिएंटेड हैं और उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, सभी बच्चे अच्छा कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, जो एनुअल एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, और उनके टीचर्स, क्योंकि बच्चों के परफॉर्मेंस का दबाव टीचर्स, स्कूल, पेरेंट्स पर होता है। तो हम टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ये है कि हम लोग यही टाइम है जब बच्चों के साथ थ्रू आउट रहें और उनका सहयोग करें, उनको मोटिवेट करें, उनको स्ट्रेस या प्रेशर ना आने दें, और जिस तरह से बच्चे अच्छी सफलता के साथ बाहर निकले। So, thank you so much for your valuable insights. An examination is only a measure of preparation, never a limit on ability. Confidence in oneself is the first step towards success. मैं अंत में आपके जो दो टीचर्स हैं, मिस गायत्री जो इंग्लिश की टीचर हैं एंड मिसेज पूजा से जो पॉडकास्ट के इंचार्ज हैं, इनको भी बधाई देना चाहते हैं कि एक ऐसा कदम इन्होंने पॉडकास्ट क्लब के द्वारा किया है कि हमारे बच्चों को, डीप स्पताउट के बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वह बैठ करके अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के सवाल पूछ सकें, उनसे जानकारी हासिल कर सकें और उनसे बात कर सकें, क्योंकि क्वेश्चनिंग भी एक लर्निंग का पार्ट होता है। हमेशा बच्चे परीक्षा ही नहीं देंगे, क्वेश्चन का सलूशन ही नहीं खोजेंगे। एक ऐसे ओकेजन मिलता है जहाँ पर बच्चे क्वेश्चन भी करते हैं। तो आपके साथ आपके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई।